Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the chapter Rocks and Minerals of class 5th subject science, and in this video we will discuss about igneous rock. Rocks and Minerals Part 1st. Dear students, we already know that rocks are non-living components of our environment that are not alive. Rocks from soil. Rocks are very hard. In this video, we will learn about what are rocks, रॉक्स क्या होती हैं, कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड अबाउट इग्नियस रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. All land on the earth is made up of soil and rocks. अर्थ की जितनी भी लैंड है अर्थ पे वो किससे बनी हुई है? सॉइल एंड रॉक से. लॉन्ग एगो द ग्राउंड वाज मोस्टली सॉलिड रॉक. जो ग्राउंड जो होता है वो सॉलिड रॉक होती है. वी हैव लर्न्ड अर्लियर how some of the rocks change to form soil. In our previous videos, हमने लास्ट जो अपना चैप्टर था उसमें इस चीज़ की स्टडी की थी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है, रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. द ग्रेन्स दैट मेक अप रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरली occurring substances called minerals. All rocks on the earth are made up of minerals. सभी जो रॉक्स होती है अर्थ पे वो मिनरल से मिलके मिनरल से ही बनी होती है. Some rocks contain only one mineral, other can contain up to 6 or more minerals. कुछ जो रॉक्स होती है वो केवल एक ही टाइप के मिनरल से मिलके बनी होती है और कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो 6 या 6 से भी ज्यादा मिनरल से मिलके बनी होती है. रॉक्स आर डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. रॉक्स का जो कलर होता है वो उसमें प्रेजेंट मिनरल्स पे डिपेंड होता है. उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो उनका रॉक्स का कलर भी डिफरेंट ही होगा. नाउ व्हाट आर रॉक्स. अब ये रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स आर मिनरल एग्रीगेट्स विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मिनरल्स ट्रेसेस. Any unique combination of chemical composition, mineralogy, grain size, texture, or other distinguished characteristics can describe rock types. Additionally, different classification systems exist for each major type of rock. There are different type of rocks existing in nature. Rocks
which are found in nature rarely show such simple characteristics and usually exhibit some variation in the set of properties as the measurement scale changes. टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन टाइप्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। रॉक्स के फॉर्मेशन के बेस्ड पे रॉक्स जो होती है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ आवर फर्स्ट ग्रुप इज igneous rock. Igneous rock is one of the 3 main rock types. यह सबसे important rocks होती है। Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma और लावा। igneous rock कैसे बनती है? यह लावा या magma को फर्स्ट क्या कूलिंग, पहले कूल किया जाता है, देन वो किस में चेंज होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो उससे कौन सी फॉर्म बनती है, फिर कौन सी रॉक बनती है? igneous rock. It means igneous rocks is formed through the cooling and solidification of magma or lava. Igneous rock may form with or without crystallization other below the surface as intrusive rocks or on the surface as extrusive rocks. This magma can be derived from partial melts of existing rocks in other a planet's mantle or crust. Typically, the melting is caused by one or more of 3 processes. इसमें मेल्टिंग के कारण जो प्रोसेस होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा होती है। An increase in temperature, a decrease in pressure or a change in composition. Formation of igneous rocks. Deep down inside the earth, it is so hot that rocks melt. हमारी अर्थ के अंदर की तरफ बहुत गहराई में हॉट क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही अंदर बहुत ही गर्म होता है, जिससे कि रॉक्स जो होती है वो मेल्ट होती है। मेल्टेड रॉक इज कॉल्ड माग्मा, जिसे हम माग्मा कहते हैं। माग्मा कीप्स गेटिंग पुश्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द प्रेशर इनसाइड द अर्थ। ये माग्मा अर्थ की सरफेस की तरफ पुश होता है, किसकी वजह से? अर्थ का अंदर से जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। हियर इट कूल्स, और यहां पर ये क्या होती है? कूल होती है। देन फॉर्म सॉलिड रॉक अगेन, और फिर इसकी कौन सी फॉर्म, ये किस में चेंज होती है? सॉलिड फॉर्म में। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। समटाइम्स द magma cools slowly and becomes solid below the surface of the earth. At other times, as in a volcano, it is thrown out to the surface where it cools quickly. जहाँ पर ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। The magma that reaches the surface of the earth is called lava. वो माग्मा जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? लावा। टाइप्स ऑफ igneous rocks. There are 2 types of igneous rock: intrusive igneous rock and extrusive
igneous rock. Now first is intrusive igneous rock. These rocks crystallize below the earth's surface, resulting in large crystals as the cooling takes place slowly. ये जो इग्नियस रॉक है, इस टाइप की इग्नियस रॉक्स में अर्थ की सरफेस के नीचे ही क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसी जगह पे कूल हो जाते हैं. टेक्स प्लेस स्लोली, धीरे धीरे कूल होते हैं. डायराइट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट are some examples of intrusive igneous rock. ये कुछ examples है. Now next is extrusive igneous rock. These rocks erupt onto the surface, resulting in small crystals as the cooling takes place quickly. ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं, जिससे कि स्मॉल जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ये अर्थ की सरफेस पे आने से क्विकली ही कूल हो जाती है, जिससे कि स्मॉल क्रिस्टल्स इनके सॉलिड फॉर्म में बनते हैं. द कूलिंग रेट इज फॉर ए फ्यू रॉक्स इज सो क्विक दैट दे फॉर्म एन एमोर्फिस ग्लास. बेसाल्ट, टफ, प्यूमाइज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव igneous rock. Some igneous rocks are basalt, granite, pumice, obsidian, etc. ये सब igneous rocks के टाइप्स है. इनके कुछ एग्जाम्पल्स है. basalt. Basalt is an igneous rock formed by lava cooling on the अर्थ सरफेस. बेसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक्स की से ही बनती है. कैसे? अर्थ की सरफेस पे लावा के कूल होने से. इट इज डेंस एंड डार्क एंड हैज फाइन ग्रेन्स. ग्रेनाइट. Granite is formed when magma cools below the surface of the earth. ग्रेनाइट जो होती है वो मैग्मा के सरफेस के, अर्थ की जो सरफेस होती है उसके अंदर की तरफ नीचे मैग्मा के कूल होने से बनती है. इट हैज लार्जर ग्रेन्स देन बेसल्ट. बहुत इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े होते हैं बेसल्ट की बजाय. एंड इज जनरली लाइट कलर्ड. इट कंटेन्स 3 मेन मिनरल्स: पिंक कलर्ड फेल्डस्पार, ग्रे कलर्ड क्वार्ट्ज एंड ब्लैक शाइनी माइका. ग्रेनाइट इज पिंक और ग्रे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार इन इट. ग्रेनाइट जो होती है पिंक और ग्रीन कलर की होती है. किस वजह से? कि वो किस पे डिपेंड करती है कि उसमें कितनी अमाउंट में फेल्डस्पार प्रेजेंट है. इट इज वेरी हार्ड एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड स्टेच्यूज. ये बहुत ही हार्ड होती है और इसीलिए स्टेच्यू और बिल्डिंग्स के लिए यूज में ली जाती है. It is also used in paved roads. Pumice. Pumice is a light colored stone formed when lava cools on the earth's surface. Pumice rock जो होती है वो अर्थ की सरफेस पे जब लावा कूल होता है तो उससे बनती है. Its peculiarity is that it is made from frothy lava containing a lot of dissolved gas, जिसमें कि बहुत सारी गैस भी डिसॉल्व होती है. when this lava cools it forms a rock.
जब ये लावा कूल होता है तो इससे ये रॉक बनती है विथ सेवरल होल्स एंड पॉकेट्स इन इट, और इसमें इन गैसेस की वजह से बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द गैस, pumice is used as a scrubber to remove rough skin from the body. प्यूमाइज स्ट्रोक जो होती है वो स्क्रबर के रूप में यूज में ली जाती है हमारी बॉडी से रफ स्किन को रिमूव करने के लिए। ऑब्सिडियन इज ऑल्सो नोन एज नेचर्स ग्लास। इसको नेचर्स ग्लास क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स ग्लेजी अपीयरेंस। It is produced when lava containing a high amount of silica cools rapidly and solidifies without time for crystal growth. ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है बिना किसी टाइम के क्रिस्टल के ग्रोथ के। The presence of iron and magnesium typically gives the obsidian a dark green to brownish black color. In ancient times, it was used to make tools due to sharp edge. Now, पहले के जो टाइम था उसमें ये किस में यूज में लिए जाते थे? टूल्स बनाने में। शार्प जो, क्योंकि ये शार्प होती है। लेकिन अभी नाउ इट इज यूज इन सर्जिकल स्कैपल ब्लेड्स। If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.